Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 26 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture we are going to discuss about input devices. Now here are different objectives of this lecture. We will discuss about the input process and the input devices. Then there are various devices like keyboard, mouse, and touch screen devices. We will also discuss these types of devices in this lecture. Now what is input? Input is any data and instructions entered into the memory of a computer. For example, I am writing the text. This is input. I have typed some keys and these numbers are given to computer by a user. So this is input. So you can say that data is input. Second, instructions are also input. Now what are the instructions? For example, I click on the save button. Now this is an instruction. I have used the my mouse pointer to execute this instruction. So whenever the direction of data is from user to computer, it is known as input. Now this is user and this is computer. So whenever the direction is from user to computer, this is known as input. अब हम कौन सी चीज़ें इनपुट में प्रोवाइड कर सकते हैं? वी कैन प्रोवाइड डाटा एंड वी कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस. सो बोथ दीज आर कंसिडर्ड एज इनपुट. जैसे मैं कॉन्स्टेंटली माउस यूज़ कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं डोंट सेव क्लिक करता हूँ, सो इट मीन्स आई हैव इशूड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. नाउ हाउ वी कैन यूज इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट? Instructions can be entered into the computer system in the form of programs, commands and user responses. यानी programs की फॉर्म में भी आप instructions प्रोवाइड कर सकते हैं, commands की फॉर्म में भी instructions प्रोवाइड कर सकते हैं और user responses की फॉर्म में भी instructions प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और बोल्ड क्लिक कर दिया. नाउ आई हैव यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट to issued command or issue instruction. So I have used a program to input instructions. Similarly, I can right click on desktop and create a new folder. अब ये instructions मैंने command के थ्रू प्रोवाइड की. इसी तरह user responses हैं. For example, I click on the folder and right click and press delete. अब जैसे ही मैंने डिलीट प्रेस किया, अब इसने मुझसे रिस्पॉन्स पूछा कि क्या मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ या नहीं. सो आई हैव टू ऑप्शंस टू क्लिक येस और नो. सो दीज आर यूज़र रिस्पॉन्सेज. सो व्हेन आई क्लिक येस, द फोल्डर इज डिलीटेड. सो अगेन आई हैव रिस्पॉन्डेड द कंप्यूटर विद माई इंस्ट्रक्शंस. फॉर इनपुट वी नीड इनपुट डिवाइस. नाउ व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट that allows users to enter data and instructions into the computer. यानी input device जो है वो data भी आप enter करने के काम आती है और instructions को भी enter करने के काम आती है. So इसको हम input device कहते हैं. Now what are different input devices? We have keyboard, we have mouse, we have touch screen displays, we have stylus pen, we have game controllers, web camera, microphone, scanner, barcode reader, magnetic credit card reader, ink character reader and biometric reader. These are all different input devices. Now what is a keyboard? A keyboard is an input device that contains different keys. User can press these keys to enter data and instructions into the computer. So आपको ये स्क्रीन पर टिपिकली एक कीबोर्ड नज़र आ रहा है जिसमें आपके पास डिफरेंट कीज़ हैं, हर की का कोई स्पेसिफिक फंक्शन. तो उसके थ्रू आप डाटा भी एंटर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी. जैसे फॉर एग्जांपल हम
जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं इनको जब प्रेस करते हैं तो डाटा एंटर करते हैं, लेकिन अगर हम F1 प्रेस करें सो वी हैव इशूड एन इंस्ट्रक्शन दैट वी नीड हेल्प। सो कीबोर्ड से भी हम इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों इनपुट कर सकते हैं। सो मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव कीबोर्ड। कीबोर्ड रिड्यूस साइज़ में भी आते हैं और फुल साइज़ में भी आते हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूज़र प्रेफर करते हैं वो हमारे पास 105 से लेकर 105 कीज़ के कीबोर्ड होते हैं। इन टाइप के कीबोर्ड में हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ तो होती हैं, लेकिन उनके साथ एक न्यूमेरिक कीपैड भी होता है जो कि नंबर्स ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। देन वी हैव फंक्शन कीज़, देन वी हैव CTRL कीज़, Alt कीज़ एंड एरो कीज़, and additionally we have a window key, application key and toggle key। अब हम देखते हैं कि इन कीज़ का फंक्शन क्या है। First of all we have different types of keys in our keyboard। First one is the alphabetic keys that are from capital A to capital Z। तो ये डाटा अल्फ़ाबेटिक डाटा एंटर करने का काम आती है। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ हैं। अगर आप कीबोर्ड की टॉप लाइन देखें तो QWE के ऊपर जो आपको लाइन नज़र आएगी वो सारी की सारी न्यूमेरिक्स को ऐड करेगी, और उसके बाद उसमें स्पेशल सिंबल्स भी हैं जैसे $, एंड, कैरेट साइन, ऐट। तो ये भी आप उन कीज से यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने नंबर्स ऐड करने तो उसके लिए न्यूमेरिक कीपैड भी यूज़ हो सकता है। देन वी हैव फंक्शंस कीज फ्रॉम F1 to F12। दिस इज़ नॉर्मली द टॉप row of a keyboard। Then there are special keys like CTRL, Alt, Shift, Enter, Backspace, Space, Insert, Del, Tab, Page Up, Page Down, Home and Windows arrow keys, Caps Lock and Num Lock। इन कीज़ का अलग पर्पज़ है। Now this is the layout of a keyboard। तो अगर आप देखें तो कीबोर्ड 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन में हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिक्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास एरो कीज़ हैं जिसमें इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड ये कीज़ हैं और एरो कीज़ हैं। थर्ड पोर्शन हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड है जो राइट साइड पर है, और उसके बाद हमारे पास फंक्शन कीज़ हैं जो ये आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा हमारे पास एस्केप की है, प्रिंट स्क्रीन की है, स्क्रॉल लॉक है और पास ब्रेक की है। ये इनका भी अलग फंक्शन है। Now what are alphanumeric keys? Alphanumeric keys contains alphabets and numbers as well as special symbols। So it is very similar to standard typewriter। We use it to write text। Now what is numeric keypad? Numeric keypad exists on the right hand side of a keyboard। It is a small keypad that has 17 keys। We have 0 to 9 digits। We have basic arithmetic operators plus, minus, multiply, divide। Then we have decimal point। Then we have a num lock key and enter key। Then we have a cursor keypad। A cursor keypad typically holds these number of keys। We have arrow keys। We have टॉप एरो की, डाउन एरो की, लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की। इसी तरह हमारे पास होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट और डिलीट की कीज़ भी हैं। देन वी हैव फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ जो हैं वो कॉमन शॉर्टकट्स हमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सारी कीज़ एक लाइन में एग्जिस्ट करती हैं फ्रॉम F1 to F12। जैसे मैंने आपको बताया कि आप F1 प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होता है हेल्प। इस तरह आप F3 प्रेस करेंगे तो इसका मीनिंग होता है सेव। आप किसी भी फाइल पर क्लिक करके F2 प्रेस करेंगे तो इसका मीनिंग है रीनेम। सो ये डिफरेंट फंक्शन कीज़ हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आता है, व्हाट इज़ कर्सर और फोकस। कर्सर इज़ ए सिंबल दैट ब्लिंक्स ऑन स्क्रीन and indicates the point where data or your characters will appear। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ
यहाँ पर आपको एक सिंबल नज़र आ रही है जो ब्लिंक कर रही है। नाउ दिस इज़ कर्सर। तो ये इंडिकेट करेगा कि जो मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा वो किस जगह पर टाइप होगा। सो दिस इज़ बेसिकली कर्सर और इंसर्शन पॉइंट। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये एरो कीज़ हैं, इनका फंक्शन क्या है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैक स्पेस? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट राइट किया, जो कर्सर है उसकी पोजीशन यहाँ पर है। अब अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो कर्सर के लेफ़्ट साइड पर जो करैक्टर होगा वो डिलीट होगा। सो अगर कर्सर यहाँ पर है, अब अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो एस डिलीट होगा। तो इसी तरह एरोज़ कीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं इस कर्सर को मूव करने के लिए। जैसे मैं राइट एरो की यूज़ कर रहा हूँ, लेफ़्ट एरो की यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हमारे पास रोज़ हैं तो हम टॉप एंड डाउन एरो कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। Now what is the purpose of delete key? For example, we have cursor here. Now when I press the delete key, the character on the right hand side of the cursor is deleted. So ये difference है backspace और delete में। Now what is caps lock? It is a toggle key. अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँगा तो जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो स्मॉल में लिखा जाएगा। हाँ, ये वर्ड का अपना फंक्शन है कि ये फर्स्ट लेटर जो है सेंटेंस का उसको कैपिटलाइज कर देता है, क्योंकि ये सेंटेंस केस को यूज़ कर रहा है। देन वी हैव ए शिफ्ट की। इफ़ वी डोंट वांट टू यूज़ द कैप्स लॉक वी कैन यूज़ ए शिफ्ट की। सो मैं लिखूँ टी दिस। अब अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके आई एस लिखूँ तो आई एस कैपिटल होगा। सो शिफ्ट के प्रेस करने से हम केस को टॉगल भी कर सकते हैं। इसी तरह शिफ्ट को यूज़ करके हम सिंबल्स भी राइट अप कर सकते हैं जो आपको न्यूमेरिक के ऊपर नज़र आएगी। न्यूमेरिक कीपैड पर नहीं, न्यूमेरिक रो के ऊपर आपको नज़र आएंगी। सिमिलरली एंटर की है, एंटर की इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। इसी तरह एंटर की जो है वो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ एंटर की। Then we have a Windows key. Now when I press Windows, it opens up the start menu. So this is Windows key. तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो आप इससे गेट कर सकते हैं। Now what are the types of keyboard? First of all, we have two types of keyboard. The first one is the wired and the second one are wireless keyboards. Wired keyboards require a wire for connection. लैपटॉप में तो ये कीबोर्ड्स क्योंकि बिल्ट इन है तो इनकी वायर्स आपको नज़र नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप की बात करें तो ऐसे कीबोर्ड्स जिसमें आपको एक वायर रिक्वायर है उन कीबोर्ड्स को आप वायर्ड कीबोर्ड्स कहते हैं। तो वायर से ये है कि आपका डिस्टेंस लिमिटेड हो जाता है कि आप कितनी स्पेस तक उसको एक्सटेंड कर सकें। तो वायर्ड कीबोर्ड के लिए हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। सीरियल पोर्ट है, PS2 पोर्ट है, ये ओल्ड हैं। नॉर्मली हम अब USB पोर्ट्स यूज़ करते हैं। सेकेंडली वी हैव वायरलेस कीबोर्ड्स। वायरलेस कीबोर्ड्स डोंट रिक्वायर ए वायर, इंस्टेड दे कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वायरलेसली। अब ये किस तरह से वायरलेसली कम्युनिकेट करते हैं? हमारे पास एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है, उस रेडियो ट्रांसमीटर को हम USB पोर्ट में इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम कीबोर्ड को किसी भी डिस्टेंस से यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली इसका डिस्टेंस जो है वो 1 या 2 रूम्स तक लिमिटेड होता है अगर आप ब्लूटूथ वाले वायरलेस कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। बट इफ़ यू यूज़ द इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन कीबोर्ड्स यू हैव टू मेंटेन ए स्पेसिफिक डिस्टेंस एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन to get your operation done. Then we have ergonomic keyboard. An ergonomic keyboard has a design that reduces the chances of wrist and hand injuries. जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये कीबोर्ड जो हैं इनकी लेआउट स्पेसिफिकली हमने इस तरह से डिज़ाइन की है कि आप प्रॉपर पोजीशनिंग में अपने हैंड्स को रख सकें और आप फास्ट वे में टाइपिंग कर सकें। तो अर्गोनॉमिक्स की वजह से आपको कंफर्टेबल कीबोर्ड्स मिलते हैं, एफिशिएंट कीबोर्ड्स मिलते हैं और इनको यूज़ करना भी सेफ़ होता है क्योंकि आपको रिस्ट एंड मसल इंजरीज नहीं होती। देन वी हैव ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स।
the keyboards that we are using on our mobile phones, especially the smartphones, are actually on screen keyboards. So अगर आप देखें तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो कीबोर्ड्स हैं उनकी आपको कीज़ भी कम मिलेंगी, आपको डिफरेंट पेजेस को स्क्रॉल करना पड़ेगा उनकी कीज़ को देखने के लिए। तो अगर आप लैपटॉप में या विंडोज़ में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देखें तो इसकी कीज़ ज़्यादा आपको मिलेंगी। सो आपके पास डेस्कटॉप में भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है और आपके पास मोबाइल फ़ोन्स में भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड? मोबाइल फ़ोन्स में जब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो वो हमें प्रिडिक्टिव टेक्स्ट इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम टाइप करें हाउ, सो आवर कीबोर्ड विल सजेस्ट अस द नेक्स्ट वर्ड आर, एंड इफ़ वी राइट आर इट विल सजेस्ट द नेक्स्ट वर्ड यू, सो इट विल ऑटोमेटिकली करेक्ट द स्पेलिंग्स एज वेल। सो इससे हमारी टाइपिंग जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पर फास्ट हो जाती है और इससे टाइम बचता है। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंटिंग डिवाइस। A pointing device is an input device that allows a user to control a pointer on screen. तो पॉइंटर क्या चीज़ है? ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इसको हम पॉइंटर कहते हैं। ये हमें इंडिकेट करता है कि हम किस पॉइंट पर स्क्रीन के हैं और हम किस और पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। सो ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द पॉइंटर लोकेशन एंड इशू कमांड्स इज़ नोन एज pointing device. The most common pointing device is a mouse. A mouse is a pointing device that fits under the palm of your hand comfortably, and it is mostly used in the desktop computers. Now a mouse can be wired or wireless. अच्छा, अब अगर आप माउस का स्ट्रक्चर देखें तो एक तो ये आपको इस शेप में नज़र आएगा जो आपके हैंड के साथ कंफर्टेबली फिट हो जाए। उसके बाद इसमें आपको नॉर्मली 3 बटन्स मिलेंगे, द लेफ़्ट माउस बटन, द राइट माउस बटन और द थर्ड स्क्रॉल और द व्हील बटन। बट सम गेमिंग माउस आल्सो प्रोवाइड 2 or 3 एडिशनल बटन्स एज वेल। सो व्हाट आर कॉमन माउस ऑपरेशंस? पॉइंट, जस्ट लाइक आई एम मूविंग द पॉइंटर, दिस इज पॉइंटिंग ऑपरेशन। देन क्लिक, just like I am clicking the buttons, this is click operation. Then we have right click, then we have double click, then we have triple click. We can drag and drop different things. This is the drag operation and this is drop operation. Then we can rotate the wheel just like I am doing here. We can press the wheel as well. So ये common mouse operations हैं. Now what is a wired mouse? Just like the wired keyboard, a wired mouse is attached to the computer using a wire. So you actually have a limited wire length और आपको किसी ख़ास या स्पेसिफिक डिस्टेंस से कंप्यूटर को यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस से किसी कंप्यूटर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सटेंशन वायर्स यूज़ कर सकते हैं, वो आपको USB में कॉमनली मिल जाती हैं। Then we have a wireless mouse. The wireless mouse doesn't require any wire for connection. Instead, it uses a radio transmitter. Now, what is a radio transmitter? ये जो आपको डिवाइस नज़र आ रही है ये एक्चुअली रिसीवर है। इसी तरह माउस के अंदर एक डिवाइस होगी जो कि रेडियो ट्रांसमीटर होगा। सो जैसे ही हम माउस को मूव करेंगे उसका रेडियो ट्रांसमीटर जो है रेडियो वेव जनरेट करेगा और ये जो डिवाइस है ये रेडियो वेव रिसीवर है। ये हमने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ लगाई होगी। तो दिस विल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द माउस और इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। सो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें केबल की लिमिट नहीं होती, हमारे पास केबल्स का जो है वो मैस नहीं क्रिएट होता। इस तरह हम डिस्टेंस से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, स्पेशली वी आर यूजिंग आवर कंप्यूटर विद LCD TV और LED TV स्क्रीन्स। सो क्योंकि केबल नहीं है तो इसमें डैमेज के चांसेस भी नहीं हैं। बट इफ़ यू लूज़ द रेडियो रिसीवर,
योर माउस विल नॉट वर्क। अब माउस कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी पोर्ट्स हैं? प्रीवियसली हम सीरियल एंड PS2 पोर्ट्स यूज़ करते थे। नाउ दिस इज़ अ सीरियल पोर्ट एंड दिस इज़ PS2 पोर्ट, बट नाउ whether we have a wired mouse or a wireless mouse, we use the USB port or universal serial bus port because it is fast. Now what is a mechanical mouse? A mechanical mouse is a computer mouse that contains a metal or rubber ball on its underside. अब एक्चुअली क्या होता था, जब हम माउस को मूव करते थे जो बॉल थी वो रोटेट करती थी, उसकी रोटेशंस के साथ व्हील्स अटैच थे, वो व्हील्स सेंसर्स के साथ अटैच थे जो उसकी मोशन को डिटेक्ट करते थे और उसकी जितना एस्टिमेशन प्रोवाइड करते थे कि हमने माउस को कितने डिस्टेंस तक मूव किया। सो उस मूवमेंट की वजह से माउस की जो पॉइंटर लोकेशन है वो कंट्रोल होती थी। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? क्योंकि ये मैकेनिकल माउस थे, जब हम इनको सरफेस पे मूव करते थे तो जो बाल कंपार्टमेंट था उसमें डस्ट चली जाती थी, उस डस्ट को क्लीन अप करना पड़ता था। नाउ इफ़ यू लूज़ द बॉल तो हम मैकेनिकल माउस को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ को हमने रिप्लेस किया ऑप्टिकल माउस से। एन ऑप्टिकल कंप्यूटर माउस यूजेज ए लाइट सोर्स दैट इज़ टिपिकली ए लाइट emitting डायोड and a light detector such as photodiodes to detect the movement relative to a surface. बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो ऑप्टिकल माउस है इसमें हम ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइट एमिटिंग डायोड लाइट जनरेट करता है, वो लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है और उसके बाद उस लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्टिव के बाद डिटेक्ट करता है लाइट डिटेक्टर, और उससे वो आइडिया गेट करता है कि हमने माउस को कितने पोजीशन तक मूव करना है। नाउ दिस टाइप ऑफ माउस यूज़ बैटरी और सेल टू प्रोवाइड पावर, अगर ये वायरलेस हैं, और अगर वायर्ड हैं तो इनको पावर जो है वो आपके कंप्यूटर से ही मिलती। सो इसका एडवांटेज क्या है कि आपको इसको क्लीन नहीं करना पड़ता, इसमें डस्ट नहीं जाती, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर माउस की जो मैकेनिकल बॉल है वो अगर कहीं गुम होगी तो आप माउस कैसे यूज़ करेंगे। सो वी हैव अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस एज वेल। वी हैव ए ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज़ जस्ट लाइक ए माउस बट देयर इज़ ए बॉल ऑन टॉप ऑफ द ट्रैक बॉल। सो ट्रैक बॉल इज़ ए स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस, यानी आपको पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इसको मूव नहीं करना पड़ता, आप ट्रैक बॉल को स्टिल पोजीशन पे रखते हैं। उसके बाद जिस तरह माउस के ऊपर स्क्रॉल है ना, उसी तरह ट्रैक बॉल के ऊपर एक बॉल होती है जिसको आप रोटेट करते हैं, जिसके थ्रू पोजीशनिंग कंट्रोल होती है। बाकी आपके पास उसी तरह क्लिकिंग बटन्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। देन वी हैव ए टच पैड। ए टच पैड इज़ आल्सो नोन एज ए ट्रैक पैड। इट इज़ ए स्मॉल फ्लैट रेक्टेंगुलर पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ सेंसिटिव टू प्रेशर एंड मोशन, जस्ट लाइक लैपटॉप्स में आपको टच पैड मिलता है। अब आप टच पैड को मूव नहीं करते, बस के उसके ऊपर अपनी फिंगर्स को मूव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग माउस की पोजीशन चेंज होती है। फिर आपके पास क्लिक बटन्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। देन वी हैव ए पॉइंटिंग स्टिक। नाउ व्हाट इज़ ए पॉइंटिंग स्टिक? यहाँ पर अगर आप कीबोर्ड की लेआउट को देखें तो आपको एक रेड कलर की स्टिक नज़र आ रही है। दिस इज़ पॉइंटिंग स्टिक। इट इज़ जस्ट लाइक ए पेंसिल रबर, लेकिन ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। जब आप इसको अपनी फिंगर से प्रेशराइज करेंगे सो इट विल मूव द माउस पॉइंटर। इसमें क्लिकिंग कैपेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन ये माउस पॉइंटर को मूव करने के काम आती है। सो दिस इज़ बेसिकली पॉइंटिंग स्टिक। नाउ वी हैव टच स्क्रीन्स एंड टच सेंसिटिव पैड्स। हमारे पास लैपटॉप में टच स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन्स हैं टच स्क्रीन, जिनको हम फिंगर्स के थ्रू टच करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर देते हैं, जस्ट लाइक वी हैव ATM मशीन्स आल्सो। सो दीज आर ऑल टच सेंसिटिव और टच स्क्रीन डिस्प्लेज। Here are two examples. We have Microsoft Surface, ये एक पॉपुलर कैटेगरी है टैब्स की।
इसी तरह टच सेंसिटिव पैड्स हैं जैसे आईपॉड वगैरह। इसी तरह टच स्क्रीन में एक और हमारे पास फीचर आता है पेन इनपुट, या जिसे हम स्टाइलस इनपुट भी कहते हैं। विद ए पेन इनपुट यू टच ए स्टाइलस और ए डिजिटल पेन ऑन ए फ्लैट सरफेस टू राइट, ड्रा और मेक सिलेक्शंस। अगर आप बात करें सैमसंग नोट सीरीज़ की, तो नोट सीरीज़ के साथ आपको एक स्टाइलस या एक पेन लाइक डिवाइस मिलती है। तो आप चाहें तो उन मोबाइल फ़ोन्स को फिंगर टच के थ्रू यूज़ कर लें, चाहे आप इस स्टाइलस के थ्रू उनको यूज़ कर लें। लेकिन जब आप स्टाइलस यूज़ करते हैं तो आप कोई नोट्स भी लिख सकते हैं, आप उससे कोई पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसके थ्रू ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और कलरिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर दिस पर्पज़ we use the pen input or stylus input with laptops or mobile phones. So in the next lecture we will discuss some more input devices.